चलिए आपको सीधे ले चलते हैं ग्वालियर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। धन्यवाद महोदय। संस्थान के निदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, भारत सरकार के सम्मान में पुष्पगत एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। Thank you, sir. Now, Honorable BOG Chairman, sir, is requested to announce commencement of the 4th convocation, Silver Jubilee Year of Atal Bihari Vajpayee, Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior. Namaskar. I declare the commencement of the 4th convocation of Atal Bihari Vajpayee, Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior. Director sir is requested to welcome Honorable Chief Guest, BOG Chairman sir, and other dignitaries and present the progress report of this institute. इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय भारत के राष्ट्रपति महोदय, अपने यशस्वी चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश माधवराव सिंधिया जी, वेरियस जनप्रतिनिधि मंत्रीगण, डिग्री रेसिपिएंट्स, our BOG chairman, and all the ladies and gentlemen and media personnel. It is my with the having the Honorable President of India in this campus first time, and she is also visitor of this institute. Madam has kindly agreed to be here, and we are really very thankful to be here at the part. We are also having our Governor of Madhya Pradesh, Chief Minister of Madhya Pradesh, and Sindhia ji in this whole auditorium. We are having various ministers of the state and other dignitaries here. I am really happy to announce that this convocation, just in all the NIT and triple IITs, we are the first to have to give the degree for the passing out batch of 2023. Regarding the progress here, the issue, no doubt, the laying stone was done in 1996 January, but the academic program started in 1998 July. So we are just completing 25 years in the academics. And then institute has gone in that way which was the mandated at mission and vision. We have limited resources in terms of our faculty members, but still we ranked with a very good ranking in sense of the triple IITs, because this year we got the ranking of the engineering in the 88 and the management in 68 out of the various national importance institutions. We have basically organized the various conferences, various FDPs, various papers, and also the various changes we are doing. Since any academic institution will not work on the only faculty members and the institute, but this institute has also taken the alumnus of the various our students in the various body of the management, in terms of Senate, in terms of the departmental management, so that they can guide us and we are moving in that direction. Various academic changes we have done. We have created 5 departments, we have created deans, and also various infrastructures, even though just we witnessed today, Madam just inaugurated, that's our 500 capacity hostel, and then certainly this institute will grow in the very faster way. So this institute is going in the same way, which was mandated, and we are trying, and with all the support of you all, that this institute will rise, I'm sure. Here at the end, I am really thankful to all of you to basically be here, and I wish my graduating students so they should have their career in the bright. Thank you very much. Thank you, sir. Now all the students who shall receive the degree are kindly requested to rise at their respective places for the oath. I request the Honorable BOG Chairman sir to provide the oath to the degree recipients
in the fourth convocation of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior. Thank you. So I'll say, and please repeat every sentence. I pledge that I will be my endeavor to discharge my duties as an honest, conscientious engineer, scientist and manager. I will always uphold my personal dignity and the integrity of business, and will use my knowledge of science, management and technology for the service of the nation and mankind, and to fame of this institute. Thank you. Thank you, sir. I request the degree recipients to be seated. Honorable BOG Chairman, sir, is requested to kindly grant the permission to present the degree recipients. Thank you. Degree award is to be presented. Now I request all the students please rise on their seat. Sir, I would like to present you all the degree recipients after the third convocation till date. Those are present here are those who could not make it here due to some reasons, but their names are recorded in the degree register. Their examination has been taken and they have been found worthy of it. You are requested to confer the respective degree to them. I, the BOG Chairman of the Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, by the vested power in my office, confer you the degree of this institute. You are expected to prove yourself in accordance with this title throughout your life with mind, word, and deed. Thank you. Thank you, sir. All the degree recipients should sit at their respective places. Honorable BOG Chairman, Chief Guest, Director, sir, and other guests are kindly requested to begin the distribution of the degree to the degree recipients. Now, I invite the Chief Guest, the President of India, to give the DSc Honorary Causa degree, the medals and the certificates of merit. Dr. Anil Kakudkar ji is requested to come forward and receive the DSc Honorary Causa degree. Dr. Anil Kakudkar was born on 11 November 1943 in Barwani Princely State, which is at present a part of Madhya Pradesh state. He has obtained his BE in Mechanical Engineering degree from Bombay University in 1963 and MSc in Experimental Stress Analysis from Nottingham University in 1969. Dr. Kakudkar was among the few chosen in the first successful peaceful nuclear explosion experiment India conducted on 18th May 1974 at Pokhran. And later, during May 1998, he was just behind then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee and played a key role in the series of successful nuclear tests conducted at Pokhran. Now, I would like to invite Dr. Anil Kakudkar ji to present his acceptance speech. नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति महोदय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय
महामहिम श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ उपस्थित सर्व मंत्रीगण, इस संस्थान के सभी अध्यापक, प्राध्यापक, विद्यार्थी और सभी विशिष्ट आमंत्रित, साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के प्रबंध मंडल के अध्यक्ष श्री दीपक घैसास जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जी, प्रबंधन मंडल और सीनेट के सभी सदस्य, सभी आमंत्रित कर्मचारी वृंद, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया, इसलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जी के प्रति बहुत विनम्र भाव से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। उच्च विद्या संस्थानों से इस प्रकार की मानद उपाधि प्राप्त होना, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा आचरण सदैव इस उपाधि की गरिमा बनाए रखने वाला रहेगा। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत अच्छी प्रगति कर रहा है। हमें शीघ्र ही इस क्षेत्र में दुनिया के अत्युच्च स्तर की बराबरी करनी होगी, ताकि हमारी उच्च तकनीकी क्षमता के आधार पर हमें दुनिया के शीर्ष देशों की बराबरी का स्थान प्राप्त हो सके। हमारी आर्थिक प्रगति ऐसे स्तर पर पहुंचना चाहिए कि हमारे सामान्य जनों का जीवन स्तर दुनिया के प्रगत देशों में मौजूद जीवन स्तर के बराबरी का हो। साथ ही साथ जैसे जैसे देश प्रगति कर आगे बढ़ रहा है, देश के अंतर्गत विषमता भी बढ़ रही है। समाज में निम्न आर्थिक स्तर पर की जनता, विशेषतः ग्रामीण इलाकों में बस रही जनता का जीवन स्तर तथा उनकी आमदनी शहरी स्तर के बराबर या उससे भी ऊपर ले जाना, यह भी विकास कार्यक्रम का एक दायित्व बनता है। इसमें भी विज्ञान और तंत्रज्ञान का काफी योगदान हो सकता है। अगर हम ग्रामीण इलाकों में अच्छी शिक्षा के अवसर और नई तकनीक उपलब्ध कराने वाला अच्छा वातावरण निर्माण कर पाए, तो आज के ज्ञान युग में ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में अधिक अर्थार्जन के अवसर निर्माण कर सकते हैं। वैश्विक स्तर की स्पर्धा में अग्रसर रहना और साथ ही साथ देशांतर्गत विषमताओं को मिटाना, ऐसा दोहरा उद्देश्य हमारी शिक्षा संस्थानों के सामने होना चाहिए। आज के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित सभी स्नातकों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Dean Academic Affairs is requested for the further proceeding of the medal distribution. The medal and the certificate of merit awardees should come on the stage to receive the medals and certificates when their names are called. Piyush Chetwani. He not only receives the certificate of merit, but also the Sitaram Jindal Gold Medal and the Institute Gold Medal, being the topper of the IPG program named Integrated BTech in IT and MBA.
Ritika Tomar. Ritika Tomar also not only gets the certificate of merit, but also receives the Sitaram Jindal Gold Medal and the Institute Gold Medal, being the topper of the IPG program named BTech in IT plus MTech in IT, that is integrated in MTech. Now I present Soumya Pathak. She is also not only the recipient of the Certificate of Merit, but the Institute Gold Medal, also being the topper of the MBA 2 years MBA program. Now I present Yash Agrawal. He is the recipient of the Certificate of Merit Award, being the topper of the MTech Computer Networks. Then Ashwani Kumar Padi. He is the recipient of the Certificate of Merit, being the topper of the MTech Information Security. Now I present the Moshir ul Haq. He is the recipient of the Certificate of Merit Award as well as the Institute Gold Medal, being the topper of the whole MTech discipline. All the three, that is computer networks, information security, and VLSI and embedded systems. Now I present the last recipient of the Certificate and Merit and the Institute Gold Medal Award, that is Mr. Devaditya Pal, and he is the topper of the BTech CSC branch. I sincerely invite the Honorable Sri Jyotiraditya Madhavrao Sindhia ji, Central Minister Civil Aviation, to address the convocation and guide us. मंच पर आसीन आज इस ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हमारे अपने परमादरणीय मांगू भाई पटेल जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष दीपक एहसास जी, डायरेक्टर साहब SN सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के तीनों मंत्रीगण तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, भरत सिंह कुशवाहा जी, हमारे ग्वालियर के यशस्वी सांसद शेजवलकर साहिब, आज जिनको इस संस्था ने डॉक्टर ऑफ साइंस से पुरस्कृत की है, अनिल कटकोचर साहिब, हमारे संस्था के सभी प्रोफेसरगण, प्राचार्यगण और सबसे महत्वपूर्ण इस संस्था की आन बान और शान मेरे सभी नौजवान दोस्तों जो इस दीक्षांत समारोह में आज महामहिम के समक्ष हम सब उपस्थित हैं।
जनजातीय गौरव के रूप में आज केवल राष्ट्र के पटल पर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस देश का गौरव के रूप में आज आप पूर्ण रूप से स्थापित हैं। और इस बात का भी संयोग है कि शिक्षा के संस्था में हमारी राष्ट्रपति महोदया उपस्थित है, लेकिन एक बात का सुंदर संयोग है कि वे स्वयं भी अपनी जिंदगी में एक शिक्षिका थी। और इस बात का भी एक सुंदर संयोग है कि उनका गौरवान्वित नाम भी उन्हें उनके शिक्षक के द्वारा दिया गया था। तो आज जैसे हमारे इतिहास की परंपरा सदैव रही और इतिहास की परंपरा में सदैव शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है। एक कहावत थी, गुरु गोविंदो खड़े कोक लागू पाए, बलिहर गुरु अपनो जिन गोविंद दियोस बताए। और गुरु गोविंद जी सदैव कहते थे कि भगवान और शिक्षक के रूप में हमारे समक्ष हैं, लेकिन वही शिक्षक है जो भगवान का रास्ता हमें दिखाता है। वही मान्यता, वही एक श्रद्धा, वही एक भावना हम अपने शिक्षक के रूप में सदैव दिल में हम बनाए रखें, यही कामना हम लोग करते हैं। आज ग्वालियर का भी एक बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि इस संस्था की रजक जयंती के अवसर पर हमारी राष्ट्रपति महोदया आज हमारे समक्ष। ये संस्था, जैसे एसएन सिंह जी ने कहा, 1996 में मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा ग्वालियर में स्थापित किया गया था, जब वे मानव संसाधन मंत्री थे। और उनकी यही सोच विचारधारा थी कि जहां एक तरफ सूचना प्रौद्योगिकी को मैनेजमेंट के साथ संगम में जोड़कर हम अपने देश में नौजवानों की एक उपयुक्त मानव संसाधन की फौज पूर्ण रूप से तैनात करें। 2002 में इस संस्था को मुख्यमंत्री जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने, हमारे प्रिय नेता, देश के गौरव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर नामकरण किया गया। और आज मैं मानता हूं कि इस संस्था की गौरव कि जो नौजवान इस संस्था से निकलकर भारत माता की सेवा के लिए तैयार होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति के आधार पर वही एक चेतना के साथ इस दीक्षांत समारोह से निकलकर देश सेवा के रास्ते पर अग्रसर होता है। ये एक बहुत ऊर्जा का स्रोत हमारे नौजवानों के लिए आज पैदा होता है। मैं केवल 3 बातें आपके समक्ष रखूंगा, खास करके मेरे नौजवानों की। भारत का भविष्य अगर कोई बनाएगा तो वो मेरा नौजवान बनाएगा। और 3 बातें आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि ऑलवेज, सदैव रिमेंबर, याद रखना कि परसिस्टेंस के साथ सदैव अपनी लक्ष्य की पूर्ति करनी। कभी ये मत समझना कि लक्ष्य हासिल हो गया है तो जीवन का लक्ष्य हासिल हो चुका है। सदैव अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। दूसरी बात कि जिस संस्था से आपको शिक्षा प्राप्ति हुई, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें यह मौका मिलता है। और आज जहां शिक्षा ग्रहण आपने की है, जब आप इसके द्वार से निकलोगे तो जहां एक तरफ अपने परिवार के झंडे को हाथ में ले रहे हो, वहां दूसरी तरफ इस संस्था के झंडे को भी हाथ में लेकर इस संस्था अपने परिवार और अपने प्रदेश और अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ आगे बढ़कर देश का नाम गौरव जरूर बनाना, इस बात का विश्वास मैं जरूर रखता हूं। और तीसरी और आखिरी बात, विश्व में अगर कहीं भी परिवर्तन आया तो वो सदैव मेरी युवा शक्ति के आधार पर आया। भारत आज विकास के रास्ते पे, भारत आज प्रगति के रास्ते पे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा, एक नई बदलाव आई, एक विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होने वाला।
10 साल 9 साल पहले हम विश्व के 11वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे थे। आज हम विश्व के 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके हैं और 2030 तक विश्व के 3री बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर भारत अग्रसर होने वाला है। तो उस पथ पर और संकल्प लेकर मुट्ठी बांधकर ये देश का भविष्य अगर बनाना है तो आप लोगों को बनाना है। और मुझे विश्वास है कि मेरी युवा पीढ़ी में जो संकल्प है, मेरी युवा पीढ़ी में जो धैर्य है, मेरी युवा पीढ़ी में जो आत्मविश्वास है और मेरी युवा पीढ़ी का दिल जो साफ है, इस देश का भविष्य आप सब लोगों के हाथों में सुरक्षित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now I sincerely invite Shri Shivraj Singh Chauhan ji, the Chief Minister of our state, Madhya Pradesh, to guide and address the convocation. हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारी हुई हमारी प्रेरणा भारत की महामान्य राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं केवल अपनी ओर से नहीं, आपकी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, प्रदेश और देश के ऊर्जावान नेता, हमारे सिविल एविएशन और इस्पात मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री दीपक जी, श्रीनिवास सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भाई तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न जी, भारत सिंह जी, सांसद आदरणीय सेजवलकर जी, और जिनको सम्मानित करके हम स्वयं धन्य हुए डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, मध्य प्रदेश के वो गौरव है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। इस संस्थान की स्थापना जैसा सिंधिया जी बता रहे थे, जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी देश के मानव संसाधन विकास मंत्री थे तब की गई। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और नाम अटल जी के नाम पर। अटल जी अद्भुत थे और ग्वालियर से उनका नाता कोई भूल नहीं सकता। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जीवा पर विराजती थी, कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी। उनकी 2 पंक्तियां आपको भी प्रेरणा देगी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी कवि थे और ये पंक्तियां हम सबको भी जीवन में हार नहीं, जो सोचा है वो कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे, इसकी प्रेरणा देती है। और आज आप सब बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी ये डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। अपने संस्थान में आपने ज्ञान के लिए प्रवेश लिया था, अब यहां से सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देश और समाज के लिए काम करने का सौभाग्य आपको मिला है और आपने शपथ भी ली है। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, इस देश के लिए, समाज के लिए। डॉक्टर काकोडकर जी कह रहे थे कि उनके लिए भी है जो विकास की दौड़ में नीचे और पीछे रह गए और इसलिए अपनी प्रतिभा और अपनी दक्षता का उपयोग आजादी के अमृत काल में देश को विकसित बनाने में और आगे बढ़ाने में आप करें, ये मेरा आप सबसे आग्रह और प्रार्थना है। देखिए, एक जमाना था 18वीं सदी तक जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने में खाद्यान्न, मसाले, कपास से बने कपड़े ये गति देते थे।
फिर औद्योगिकरण का युग आया तो विशेषकर डीजल, पेट्रोल, तेल, ये अर्थव्यवस्था को गतिमान बना के रखने लगी। लेकिन आज 21वीं सदी का ईंधन है डाटा और सूचनाओं पर आधारित एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वो विधाएं हैं जिनमें महारत हासिल करके लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हर क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बदलाव आ रहे हैं, फार्मिंग से लेकर फाइनेंस तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक, हर क्षेत्र का स्वरूप बदलने वाला है और उसके ध्वज बाहर के आप। इसलिए मैं आप सबका को बधाई भी देता हूं। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन और नेतृत्व का अनूठा संगम आज भारत के पास है और एक बार उसने हमें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जैसा सिंधिया जी बता रहे थे कि हम एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। और वो बने, इसकी जवाबदारी और इसमें हिस्सेदारी निभाना, ये भी मित्रों आपका काम है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश बहुत संभावनाओं का प्रदेश है। जैसे देश आगे बढ़ रहा है, मैं केवल 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट लगातार 18 के आसपास, लगातार पिछले साल हम 18.6 थे, इस बार 16.06%। हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारी कभी 11,000 रुपए हुआ करती थी, आज 1,40,000 रुपये है। हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 71,000 करोड़ था 5-6 तक, आज बढ़कर 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ाने में आपके ज्ञान का उपयोग हो, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि रोल आपको भी प्ले करना है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टेक्नोलॉजी का फील्ड बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब आप देखिए, आप में से मुझे बताए कई का कंपनियों में प्लेसमेंट हो चुका है। अब अर्निंग शुरू हो जाएगी, लेकिन लर्निंग मत भूलना, जीवन भर सीखते रहना। यहां से निकलने के बाद आप सबको इस गौरवशाली संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसलिए आप बेंगलोर में रहें या बर्लिन में, नोएडा में रहें या न्यूयॉर्क में, हैदराबाद में रहें या हांगकांग में, आप संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश को प्रमोट करने का उत्तरदायित्व भी आप निभाते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां और महामहिम का एक बार फिर बहुत हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद श्रीमान जी आपके ओजपूर्ण मार्गदर्शन के लिए। मैं आज के विशिष्ट अतिथि एवं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को उनके दीक्षांत भाषण एवं मार्गदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी सभी को नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, संचालक मंडल अध्यक्ष श्री दीपक गौसा जी,
संचालक एवं प्रबंधन श्री निवास सिंह जी, सरकार के मंत्रिमंडल के सभी मंत्री श्री तुलसीराम सिंह सिलावट जी, भरत सिंह जी, सांसद सेजवलकर जी, माननीय अनिल जी, प्रोफेसर गण, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर की नगरी ग्वालियर आगमन पर समस्त प्रदेश की ओर से मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी और पदक विजेता को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी शुभकामना देता हूं, जो कठिन समय में सदा आपके साथ खड़े रहे। मैं IITM टीम के प्राध्यापक और यहाँ की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, जिसका विद्यार्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार के चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम में तहत समर्पित 30 संस्थानों में शामिल होने और 2022 का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार प्राप्त करने लिए IITM ग्वालियर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि कल्याणकारी राज्य में उसी प्रौद्योगिकी का उपयोग सफल है जो सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में उपयोग हो सके। सतत समग्र विकास के लिए आज की आवश्यकता है कि स्मार्ट उपकरण और प्रणाली या सामान्य लोगों की पहुंच में हो। जरूरी है कि प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय संस्थान ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करे जो तकनीकी रूप में कुशल और अपडेटेड हो। नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कल्याण और विकास के नए समाधान प्रस्तुत करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करेंगी। प्रिय छात्र छात्राओं, आप ऐसे समय में व्यवहारिक दुनिया में कदम रख रहे हैं जब हमारे देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। G20 की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान प्रयासों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश में IT सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले वर्षों में देश की GDP में IT सेक्टर का योगदान 4.5 गुना बढ़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में मैं देश समाज को आपसे बहुत आशा है, इसलिए कि राष्ट्र समाज का कल्याण आपके कार्यों के दिशा और लक्ष्य होना चाहिए। आपने जो तकनीक और सामाजिक कौशल हासिल की है, उसका उपयोग पिछड़े और वंचित लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग दिव्यांग लोगों, सीनियर सिटीजन या अन्य जरूरतमंद वर्गों की सहायता में अधिक से अधिक करने के लिए संकल्पित रहना होगा। आप अभी युवा हैं और आपके सामने पूरा जीवन, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहे और भी उसमें उत्कृष्टता की जोर बढ़े। अंत में मैं कहूंगा कि आजीविका कमाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में बेहतर करने के लिए मैं समझता हूं आपको बहुत मेहनत करने पड़ेगी। आप बहुत आगे बढ़ो, मगर 2-3 बात ध्यान रखना जरूरी है। कितने भी बड़े हो या आपको विदेश में भी जाकर अपना
करो, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने बोला है। जरूर आगे बढ़िए, मगर माँ बाप को कभी मत भूलना, समाज को कभी नहीं भूलना। जीवन पर्यंत कोई ऐसा काम न करे जिसमें अपने देश को नुकसान हो, ये आपको जरूर करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये संस्थान में जो आपने शिक्षा लिया है उसी तरह लिया है, उसका आजीवन कैसे आचरण में रखे। यहाँ आचरण शब्द का भी उपयोग किया है। आदमी बहुत कुछ जानता है मगर आचरण में नहीं रख सकता। कठिन है बात, मगर आचरण में रखो और माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का अति व्यस्तता होके बीच में भी ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आभार ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आभार। भारत माता की जय। थैंक यू। Thank you, sir, for your blessings to the young minds. इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि भारत वर्ष की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके दीक्षांत उद्बोधन, मार्गदर्शन एवं आशीर्वचनों हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री दीपक घेसास जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्री निवास सिंह जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यगण, संस्थान के प्राध्यापकगण, सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकगण, देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा नमस्कार। आज यह अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये दीक्षांत समारोह इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इस संस्थान के कार्यकाल के 25 वर्ष भी पूरी हो गया है। इस सिल्वर जुबली दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आप सबके परिवारजनों और प्राध्यापकों को भी मैं बधाई देती हूँ। आज आप सबकी कई वर्षों की मेहनत सफल हुई है और आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज का डॉक्टर अनिल काकोडकर को एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनरिज कॉजा डिग्री से सम्मान किया गया है। मैं डॉक्टर काकोडकर को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यह शहर अपने महलों, मंदिरों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के इतिहास में ग्वालियर शहर और क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मराठियों द्वारा किए गए संघर्ष में सिंधिया वंश की
उल्लेखनीय भूमिका रहा है। 20वीं सदी में ग्वालियर में आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने में भी सिंधिया परिवार ने सक्रिय योगदान दिया है। ग्वालियर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर में स्थित संगीत सम्राट तानसेन के गांव को तानसेन नगर का नाम दिया गया है। भारतीय संस्कृति की अनेक बहुमूल्य धरोहर को ग्वालियर में संरक्षित किया गया है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि शून्य अथवा जीरो विश्व को भारत की देन है। भारत द्वारा प्राचीन काल में ही शून्यों की अवधारणा विकसित कर ली गई थी तथा पांडुलिपियों में शून्यों के लिखित उदाहरण मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शून्य के फिजिकल इंस्क्रिप्शन का सबसे प्राचीन रूप सदियों पहले निर्मित ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में देखा जाता है। मैं समझती हूँ कि प्राचीन भारत में विज्ञान के उत्सर्ग के ऐसे उदाहरण टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रेरक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे विद्यार्थी भारतीय परंपराओं और ज्ञान विज्ञान के स्रोतों से जुड़े तथा आधुनिकतम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाएं। ग्वालियर आकर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सादर स्मरण करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ। ग्वालियर उनका प्रमुख कर्मस्थल रहा है। भारत रत्न वाजपेयी जी समकालीन भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, जिन्होंने एक प्रभावशाली विरासत छोड़ी है। अटल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेलीकॉम सेक्टर के व्यापक विस्तार को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया है। वे मानते थे कि कनेक्टिविटी राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है। आज आप सब विद्यार्थी भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि इससे कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी आज विश्व में अग्रणी स्थान पर है। आप सब इसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की मदद से और अधिक मजबूत बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आप सभी युवा विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचें जो विकास की यात्रा में थोड़े पीछे रह गए हैं। समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना आपकी प्रगति के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरों की सहायता करने से अपनी क्षमताओं का विकास भी होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। मेरा आग्रह है कि पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने पर आप विशेष ध्यान दें। मध्य प्रदेश की अपनी पिछली यात्रा में के दौरान नवंबर में शहडोल में आयोजित एक समारोह में मुझे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जैसे कि हम पेशा कहते हैं, का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला था। ये एक्ट जनजातीय समुदाय के लोगों के हित में लागू किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत भी पहले मध्य प्रदेश में ही की गई थी। जनजातीय समाज के हित में केंद्र और राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु कार्य करने की भावना से के साथ देश में महिलाओं के हित में भी अनेक कदम उठाया जा रहा है। लेकिन समाज में बहुत अधिक शक्ति होती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर आप सभी युवाओं का ये दायित्व है कि समाज के पिछड़े लोगों के विकास में अपनी भागीदारी समझे। मुझे खुशी है कि हमारा समाज और देश इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। प्यारे विद्यार्थियों,
मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास के साथ दुनिया में कदम रखें और आगे बढ़ते जाइए। कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती आपको अपने लक्ष्यों की हासिल करने में नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ना होगा। लक्ष्यों से निगाह हटाने नहीं चाहिए और आप सब सफल हो जाएंगे तो दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इस संस्थान के 500 बेड वाले बॉयज हॉस्टल का शिलान्यास करने का भी अवसर मिला। मैं आशा करती हूँ कि ये हॉस्टल और इस इंस्टीट्यूट की अन्य सुविधाएं विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए उपयोगी वातावरण प्रदान करने में सहायक होगी। एक खुशी की बात है कि IIITM ग्वालियर शिक्षा का एक ऐसा उत्कृष्ट केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जहां उच्च स्तर की शिक्षा और अनुसंधान के निरंतर बढ़ावा मिलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होने के नाते भी इस इंस्टीट्यूट का ये कर्तव्य है कि देश को आगे ले जाने की दिशा में नवीन प्रयास करें और ऐसे विद्यार्थियों तैयार करें जो अपनी सोच और कार्य से देश और दुनिया की समस्याओं के समाधान ढूंढने में योगदान दें। एक खुशी की बात है कि इस संस्थान ने स्थानीय समुदायों की मदद के लिए भी विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। संस्थान के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों आसपास के गांव में सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं। स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के द्वारा स्थानीय समुदाय के गरीब स्कूली बच्चों को सलाह और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। अभी मैं ऐसे कुछ बच्चों से मिली जो इस कार्यक्रम की सहायता से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये देखकर संतोष हुआ है कि हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं और देश के समावेशी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं IIITM ग्वालियर की इस पहल की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इंस्टीट्यूट के अधिकांश विद्यार्थी की प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में हो गई है। नौकरी मिलने की खुशी, खासकर जीवन की पहली नौकरी मिलने की खुशी अलग ही होती है ना। मैं संस्थान की पूरी टीम को और सभी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के लिए बहुत बधाई देती हूँ। मैं इस बात पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जिन विद्यार्थियों की प्लेसमेंट नहीं हुई है उनकी क्षमता किसी भी मायने में कम नहीं है और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए अनगिनत अवसर मिलेंगे। मुझे ये भी बताया गया है कि आप में से कुछ विद्यार्थी एंटरप्रेन्योर और सिविल सर्वेंट बनने की भी तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर सिर्फ कॉम्पीट ही नहीं बल्कि लीड भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी संस्थान विद्यार्थियों और हमारे उद्योग मिलकर काम करेंगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब बन सकेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आज आप सब बहुत उत्साह से अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए ये जरूरी है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको समय समय पर परखने चाहिए। हो सकता है कि आज आपने जो रास्ता चुना है वो आज आपको सही लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ में आए कि जो आप जीवन में कर रहे हैं आप उसके लिए नहीं बने हैं। आपको कोई बार रास्ता भी मिल सकता है, कोई और रास्ता भी मिल सकता है जो आपके लिए बेहतर हो। ऐसे स्थितियों में निर्णय लेने से और नए रास्ते पर चलने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
दृढ़ संकल्प के साथ सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ जाएंगे तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा और जीवन में संतुष्टि भी मिलेगी। किसी भी नौकरी से मिलने वाला आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जॉब सैटिस्फैक्शन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जीवन में खुद से सवाल करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। अंत में मैं एक बार फिर सभी उपाधि और पद प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आप सभी के सन्नी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, madam, for your blessings to the young minds. Director sir is requested for further proceeding. For closing. Now I request our Honorable BOG Chairman to close the convocation. I announce the closing of the fourth convocation of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior. Thank you. Honorable BOG Chairman, Chief Guest, distinguished guests, Director and all the ladies and gentlemen present in the auditorium are requested to kindly stand up at their respective place for the national anthem.